स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं? अगर एलसी ऑसिलेशंस होती है अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो, ठीक, और एक इंडक्टर हो, इसको हम कहते हैं एलसी सर्किट। ठीक है, LC circuit. Okay, you know that this capacitor, let us suppose that it has a capacity C and this has a inductance L. We know that जो कैपेसिटर होता है वो दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर भी जो एनर्जी स्टोर करते हैं, ये एनर्जी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, while as this inductor stores energy in magnetic field. Okay. So what happens that if we charge a capacitor and connect this circuit? Now let us suppose that at a time t equal to 0, ठीक, this capacitor is fully charged, यानी completely charged है, ठीक, and now this is connected. What will happen? Current will, चूंकि ये डिस्चार्ज होने लगेगा, current I will flow in this. ठीक, so at t is equal to 0, the charge on the capacitor is maximum Qm. ठीक है, ये चार्ज है कैपेसिटर पर। अब जैसे ये स्टार्ट करेगा, जब हमने इसको क्लोज किया की को, तो करंट बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? When current passes through, magnetic field will also be developed. ठीक, so magnetic field will be developed in this. As the current flows, as the charge यहाँ से निकलेगा, charge will go on decreasing, but current will go on increasing, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई? So ये बढ़ती चली जाएगी till this gets completely discharged. तो यहाँ पर पूरा magnetic field में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तब यहां से करंट फिर से वापस इसको बहने लगेगी, इसको चार्ज करने लगेगी। ठीक, तो लेट अस फर्स्ट अप्लाई दिस Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's law to this. Now we have assumed that current I is passing through this, then this potential developed at this capacitor is Vc, and here potential developed, let's say this is point A and this is point B, this is positive and this is negative, because current will flow from this into this direction, so this will be at higher potential. Then point B, it will be at lower potential. So potential at inductor will be VL. ठीक, so since there is no conductor, तो हम इसको जीरो भी लिख सकते हैं। तो अगर हम Kirchhoff's law लगाएंगे यहाँ पर, तो Q by C, that is the potential at this, माइनस, क्यों माइनस? बिकॉज ऑफ द लेंज़ लॉ। तो यहाँ पर क्योंकि करंट यहाँ से हायर टू लोअर जा रही है एंड वी आर ट्रैवर्सिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी एज पर लेंज़ लॉ या Kirchhoff's law, this will be negative. So this voltage developed across this capacitor, this inductor will be L di by dt, that is equal to 0. Okay, now since as this starts discharging, current I will increase, charge Q will decrease. ठीक है, so dq by dt is minus I. क्यों? चार्ज डिक्रीज होने लगता है। ठीक, so it will be minus I. So if we substitute here, then what we will get? Q by C minus L minus L d by dt, तो माइनस को यहां क्रॉस करो, इट विल बी माइनस dq by dt. सो माइनस बाहर आ जाएगा, सो q by c इज इक्वल प्लस L d2 सेकंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0. ठीक, नाउ यहां से हम L को इसको इसके तरह से भी लिख सकते हैं, d2q by dt2 प्लस q by LC इज इक्वल टू 0. क्यों? हमने इसको यहां लाया। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। नाउ इफ वी कंपेयर एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपने 11th में पढ़ी है, सो वो क्या होती है? d2x
बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये किसकी होती है? सिंपल हार्मोनिक। यहाँ x होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, तो ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इफ वी कंपेयर Q इज x इज रिप्लेस्ड बाय Q एंड LC, यहाँ पर 1 by LC is equal to omega square. So if we substitute omega square is equal to 1 by LC in this equation, ठीक, so what we will get? d2q by dt2 plus omega square here, omega square is called LC. So what we'll get? We will get यहाँ 1 by and q is equal to 0, ठीक। Now यहाँ से हम कुछ और पहले इसको करेंगे। देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट LC, ठीक, और 2 पाई f जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 by LC, बिकॉज ओमेगा रूट LC, ठीक है। नाउ f निकालने के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो f विल बी इक्वल टू 1 by 2 पाई रूट LC, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हो, टाइम पीरियड क्या निकलेगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट विल 2 पाई रूट LC। तो ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गई लीनियर फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम पीरियड। अब इसमें हमने सबस्टिट्यूट किया। नाउ दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नाउ व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन? नाउ वी विल सॉल्व इट। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय Q is equal to QM cos of omega t plus phi, ठीक है। ये ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ा है, ठीक है। नाउ एट t is equal to 0, Q किसके बराबर था? मैक्सिमम चार्ज ऑन QM, ओके, दैट इज QM। एंड what will be this? If we substitute in this, what will be at t is equal to 0, तो Q क्या बनेगा? QM, ये तो ऑलरेडी QM है, cos ओमेगा t हमने 0 लिया तो इतना 0 हो जाएगा, बचा क्या? phi। सो 1 इज इक्वल टू cos phi। तो cos phi का 1 होता है जब phi इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें बैक हम सबस्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगी इक्वेशन? Q इज इक्वल टू QM cos, यहाँ 0 लिखेंगे, ओमेगा 0, ठीक, ओमेगा 0 t, क्योंकि ये 0 कर दिया हमने। ये इसका सॉल्यूशन हो गया चार्ज के लिए। अब इसमें से हम करंट की इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर करंट की निकालेंगे, ठीक है। नाउ फॉर करंट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट? दिस इक्वेशन। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, dq by dt इज इक्वल टू QM, तो ऐसे ही रहेगा। cos की डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा की इंटरनल डिफरेंशिएशन, ओमेगा 0 की ओमेगा 0 साइन ओमेगा t। नाउ dq by dt is equal to minus QM omega 0 sin omega t. Now dq by dt is equal to minus I. क्यों? Because charge is decreasing, so rate of change will be negative. So minus I. So इसमें अगर सबस्टिट्यूट करेंगे, I minus and minus will cancel. I will be equal to QM omega naught sin omega t. Now QM omega naught, ये क्या हम लिखते हैं? Is equal to IM, the maximum value or peak value of the current. So I will be equal to IM sin omega t. ठीक है, these were the equations, क्या? चार्ज के लिए ये और करंट के लिए ये, ठीक है ना। तो अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे क्या होता है। यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए हमने देखा कि जो इक्वेशन निकली हमें d2q by dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर q इज इक्वल टू 0, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो इससे हमें पता चलता है जो LC सर्किट होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक। तो चार्ज किसके बराबर निकला था? Q इज इक्वल टू QM cos 0 ओमेगा t एंड I का जो सोल्यूशन था I ये है, ठीक। ओमेगा 0 1 by रूट LC, लीनियर फ्रीक्वेंसी 1 by 2 पर अंडर रूट ऑफ LC और टाइम पीरियड इसका ये। अब इसको हम जरा इसमें एनालिसिस करेंगे। तो पहले हमारा जो ये वाली डायग्राम नंबर 1,
ये फुल्ली चार्ज होता है T इज इक्वल टू 0। यहाँ इसमें कोई चीज़ मतलब हमने स्विच ऑन नहीं किया, तो जो सारी एनर्जी इसमें स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/2 QM स्क्वायर, क्योंकि Q एट T इज इक्वल, इसमें चार्ज मैक्सिमम होता है QM। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें UB मैग्नेटिक एनर्जी कोई नहीं होती क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे पास स्ट्रेचड स्ट्रिंग है, उसको हमने स्ट्रेच करके रखा है, टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दी है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट A है, तो इसकी एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी 1/2 KA स्क्वायर, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं फिगर नंबर 2, तो ये चार्ज लूज करना स्टार्ट हो जाएगा, तो चार्ज जब लूज तो करंट यहाँ बहेगी, जब करंट बहेगी इंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो करंट ऐसे चली जाएगी, तो ये लूज करता जाएगा चार्ज कम कम। देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 दिखाए, यहाँ पर 2 ही दिखाए। ठीक, उसका मतलब है ये जो यहाँ पर थी पहले जब इस पॉइंट पे, तो ये मैकेनिकल जो स्प्रिंग थी हमने रिलीज नहीं, तो अब हमने रिलीज की, तो आहिस्ता ये स्प्रिंग यहाँ चली जाएगी। उसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगी और काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब यहाँ चार्ज लूज करना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन करंट इंक्रीज होती जाएगी, वो सेम है जैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, तो जब ये सारा चार्ज डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, यानी कोई चार्ज यहाँ नहीं दिखा, तो ये सारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो UB किसके बराबर है 1/2 LIM स्क्वायर। IM इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये मामला कब होता है, T, जब टाइम पीरियड होता है T/4। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। अब जो सारी एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मतलब है ये जो स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था अब चल रहा है यहाँ, तो मीन पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब चूंकि इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी, इसमें कोई चार्ज है, तो करंट विल स्टार्ट अगेन फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो इट विल बिल्ड अप पॉजिटिव चार्ज इन दिस प्लेट, पहले इस प्लेट पे था, तो करंट इस पे, तो प्लेट इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इस पे नेगेटिव, तो करंट बहना स्टार्ट होगी, तो ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी लूज करना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब जो हमारा जो मास है वो अब मीन पोजीशन से इधर की तरफ चला गया, तो इस पोजीशन पे क्या होगी, कुछ एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ होगी कैपेसिटर में होते। ठीक, तो उसके बाद जब ये सारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लूज करेगा, तो ये सारा बिल्डअप चार्ज यहाँ पर होगा, लेकिन अपोजिट प्लेट में। स्टार्ट हमने किया था पॉजिटिव प्लेट यहाँ और ये। ठीक, तो तब कहाँ पहुंचेगा ये, इट विल बी एट, जब ये सारा चार्ज लूज करेगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे, T/2 पर। ठीक है ना, अब करंट क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा तो उसमें करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में स्टार्ट, जो अगर मैंने ओवर फिगर नहीं बना तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट, तो ये चार्ज ऐसे होने लगेगा, फिर ये चार्ज डिस्चार्ज का साइकिल ऐसे देखिए, चार्ज हो गया, फिर आगे मैग्नेटिक एनर्जी फिर रिलीज होगा, फिर इसी तरह से ये जो एनर्जी है ऑसिलेट करती रहेगी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बट हियर वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस इन द एनर्जी, देयर आर जो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर लॉसेस जो होते हैं, रेजिस्टेंस तो होती है तो लॉसेस होते हैं। ठीक, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो असल में डैम्पर्ड हार्मोनिक मोशन है। ये इस्तेमाल की जाती है कहाँ, जहाँ आपको मैग्नेटिक जो टीवी वगैरह सिग्नल में, तो ये ऑसिलेट करता है, ये रेडिएट करता है इसकी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो फिर आगे बढ़ती हैं। कंजर्वेशन, अब नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन of energy in LC सर्किट। ठीक है ना, जो हमने LC सर्किट पढ़ा, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि नहीं होती है। नाउ टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इन दिस LC सर्किट इज एट एनी इंस्टेंट T। ठीक है ना, किसी टाइम T पे इट विल बी UE प्लस UB, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगी कैपेसिटर में, कुछ इंडक्टर में स्टोर होगी, तो वो कैसे लिखेंगे, 1/2 Q स्क्वायर C प्लस 1/2 LI स्क्वायर। What is I? I is the instantaneous value of current and Q is the instantaneous value of charge. Now we know that Q हमने अभी देखा, Q किसके बराबर था, QM cos of omega 0t, और I क्या था, I था IM साइन ऑफ ओमेगा 0t।
ठीक है, तो we will substitute in this, so what will happen, so u will be equal to 1 by 2 q square, that will be qm square cos square omega 0 t, ठीक है, divided by c square, ठीक है, नो divided by c, ठीक है, ये cos है यहाँ पर, प्लस 1 by 2 l, I किसके बराबर है, I m, that is I m sin omega 0 t whole square, ठीक है, so this will be equal to u will be equal to 1 by 2 c q m square cos square omega 0 t डिवाइड, ठीक है, यहां तक हो गया, प्लस 1 by 2, देखिए आई एम किसके बराबर था, आई एम था आपका, जो मैंने इससे पहले बताया था, आई एम इज इक्वल टू ओमेगा 0 क्यू एम, ठीक है ना, तो 1 by 2 एल ओमेगा 0 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी, ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ये क्यू एम थोड़ा लंबा सा लिखेंगे, ओके, अब फिर से हम यहाँ पर एल ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वो, सो यू विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 सी क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 टी प्लस 1 बाई 2 एल, इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1 बाई एल सी क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी, ठीक है, एल एंड एल विल कैंसल, ठीक, अब क्या बचा, देखिए क्यू एम स्क्वायर, यहाँ पर भी क्यू एम स्क्वायर है, 2c यहाँ पर भी 2c, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, u इज इक्वल 1 बाई 2c क्यू एम स्क्वायर, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी, बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो u विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, सो ये वही एनर्जी है जो स्टार्ट में कैपेसिटर को होती है, ठीक है ना, जब t 0 होता है तो सारा ये किसमें स्टोर होता है, इन कैपेसिटर, तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो पहली एनर्जी थी वो बाद में भी निकली, ओके, थैंक यू।